Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. Whatever the examination held, what the mistaken by you, try to dissolve the fact and steps followed in solving the questions. So, I R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar is going to explain the problems, steps that should be adopted by you in solving the questions. Dissolve the fact. Now dear children, in previous video, question number first and second was explained, and in this video you have to learn the steps taken for the sake of you, how to solve the questions, how to dissolve the information given. Question number 7. KP Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 each fully called. Now this line, question number 7. KP Limited, one of the company, 1000 shares forfeited. Shares forfeited. Of 10 each, the price of the shares is equal to 10 each. You can see on which rupees 6000 has been paid. मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि 6000 रुपए उस पर प्राप्त हो चुके हैं. पूरा टोटल कास्ट शेयर का हो जाएगा 1000 into 10 is equal to 10,000. The amount received by the company, amount received according to the question, according to the information received by the company is equal to 6,000. Out of these, just go through the steps, go through the information given in the question. You can easily solve the questions. 800 shares out of these shares means 1000 shares. 800 shares are being reissued in rupees 7,000 means reissued shares. Reissued shares is equal to 800 in rupees 7,000. Fully paid up. पूरा का पूरा वैल्यू उनसे लिया जाएगा. मतलब 10 रुपए के हिसाब से. तो आपका कास्ट जो होगा 800 into 10 is equal to 8,000 और आप पा कितना रहे हैं 7,000. मतलब जो 1000 का डिफरेंस हो रहा है 1000 रुपए डिस्काउंट पर आप रीइश्यू कर रहे हैं, तो ये जो फॉरफिटेड अमाउंट होगा उससे लेंगे. अब यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि 1000 शेयर 10 रुपए वाला जब्त कर रही, जिस पर 6000 प्राप्त कर चुकी है, तो कंपनी जो पैसा प्राप्त की रहेगी उसी को ना जब्त करेगी. तो ये होगा 6000 रुपए फॉरफिटेड अमाउंट है. अब इनमें से 800 शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं. अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे.
मतलब फॉरफिटेड अमाउंट से 1000 लेकर के जो बचेगा उसे ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि 800 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, बिकॉज 1000 शेयर्स जब कंपनी जब्त कर रही है तो हम कितना फॉरफिट हो रहा है अमाउंट, 6000 फॉरफिटेड देयरफॉर 1 शेयर, एक शेयर पर कितना हो जाएगा 6000 अपॉन 1000, देयरफॉर 800 शेयर पर, अब 800 शेयर का आप निकाल लेंगे तो इनटू 800 इक्वल टू 4800 रुपीज 4800 आपका ये फॉरफिटेड अमाउंट होगा 800 शेयर का। एक शेयर का 6 रुपीज आपने निकाल लिया तो 800 शेयर का 4800। अब जो शेयर हम इशू कर रहे हैं 7000 रुपए में, 8000 में करना चाहिए था हमको, तो 1000 रुपीज हम कैपिटल रिजर्व इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट माइनस डिजर्व्ड अमाउंट टेकन फॉर द forfeited amount minus amount taken for the reissue, amount taken for reissue, forfeited amount is equal to 4800 minus 1000 rupees 3800. 3800 will be the amount of that is to be transferred to capital reserve account. In question number 8, we can see the information that is given. If rupees 2 lakhs 6% डिवेंचर आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है 2 लाख रुपए के शेयर डिवेंचर इशू किए गए पब्लिक में, किसी कंपनी को दिए गए, उसके एसेट्स को मतलब कैश के अलावा कुछ उसकी संपत्ति खरीदने के लिए। परचेज कंसिडरेशन मीन्स व्हेन द अमाउंट पेड बाय द कंपनी टू द पार्टी टू द क्रेडिटर्स issue of debentures instead of cash, that is called the purchase consideration. The amount paid by the company by issuing the debenture to the party, to the creditors instead of cash, that is called purchase consideration. मेरे कहने का मतलब हुआ रुपया 2 लाख उस पार्टी को दिया गया, 2 लाख रुपए के 8% डिवेंचर इशू किए गए जिसकी कोई संपत्ति खरीदी गई। और पहला ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है क्वेश्चन में। दूसरा इंफॉर्मेशन ये दिया जा रहा है रुपीज 3000 8% डिवेंचर। दूसरा इंफॉर्मेशन है रुपीज 3 lakhs 8% डिवेंचर, और दिस वन इज द 6% डिवेंचर। आई थिंक 8% डिवेंचर
कोलाटेरल सिक्योरिटी, कोलाटेरल सिक्योरिटी। एंड थर्ड इंफॉर्मेशन, एज ए कैश, फॉर द कैश कंपनी रेजिंग द लोन आर raising its fund by issue of debenture rupees 5 lakhs, rupees 5 lakhs, 10% debenture issue for cash, issue for cash। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो साल का इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो आप देखेंगे जो ये पहले कंडीशन में दिया गया है कि 2 लाख रुपए का डिवेंचर 6% वाला, ये परचेज कंसिडरेशन का है, कोई संपत्ति खरीदी गई है उसके लिए, तो इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 2 lakhs इंटू साल का इंटरेस्ट 6/100 इक्वल टू 12,000। आप जैसा कि जानते हैं एडिशनल सिक्योरिटी दी जाती है कभी कभी समटाइम्स, जो डिवेंचर होते हैं वो कोलाटेरल सिक्योरिटी के रूप में किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन के जो एसेट्स एज ए मॉर्टेज रहती है वो पर्याप्त नहीं होती है, तो कंपनियां कोलाटेरल सिक्योरिटी देती हैं 3 लाख रुपए के 8%, जिन पर कोई ब्याज नहीं लगता, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तीसरे कंडीशन में 5 लाख रुपए के 10% वाले डिवेंचर हैं जो कैश में इशू किए जा रहे हैं, तो इस पर होगा 10 lakhs इंटू 10/100, 5 lakhs इंटू 10/100 इक्वल टू 50,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इक्वल टू 62,000। दोनों को आपने जोड़ दिया, 62,000 का आपका इंटरेस्ट हो गया, कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन का सबसे सर्वप्रथम फर्स्टली आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है। क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि हमें किस प्रकार आप सॉल्व करें। जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको पढ़ते जाइए और आप बेहतर ढंग से उसे डिजर्व कर सकते हैं। आज के लिए 2 ही क्वेश्चन, अगली वीडियो में हम अदर क्वेश्चंस देंगे। थैंक यू वेरी मच।